Good morning to all of you, and I welcome you all to fifth day of orientation cum induction program of Department of Sociology and Social Anthropology. I welcome the speaker of the occasion, Professor Abha Chauhanji, and I also welcome head of the department, Dr. Shashi Poonamji, other faculty members of the department, other faculty people who have joined us who are not from our institution. I can see Dr. Arun. I welcome the research scholars and all the students of the department to this orientation day 5 first session. I'm delighted to introduce amongst you all the speaker of the occasion, a renowned sociologist and a well-known academician, Professor Abha Chauhan जी. मैम आपका आज के इस सत्र में स्वागत है. मैम is president of Indian Sociological Society. Ma'am has several national and international publications to her credit. मैम की इंट्रोडक्शन बहुत लंबी है, लेकिन एक पर्सनल लाइन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई एम fortunate enough, in fact me and Arun also, we are fortunate enough to have a mentor like ma'am in our lives. I have done my research, MPhil, PhD under the kind guidance of Abha ma'am. So, ma'am, students are very excited to interact with you. So I will not delay it anymore. So, without taking much time, ma'am, I hand over mic to you. Please, ma'am. Okay. Thank you very much for inviting me to deliver this lecture in the orientation program of the Department of Sociology and Social Anthropology, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala. The convener of this program, Dr. Shreya Bakshi, Dr. Arun Kumar, both of them, as she has already said, have been my students. I would always say students, though they are now assistant professor and teacher in their own right. And Dr. Shashi Poonam, the head of the department, and I have known her for several years. All the faculty members here, the research scholars, the students, and everybody who has joined this. So, as said that the topic of the lecture, actually it was just, it's a very broad one, understanding Indian sociology and its relevance. And as is the tradition, because you know that I think Shreya, an introduction would have been more apt if it was just said that she's the director, Center for Kashmir Studies. I think she was like maybe swayed over by the fact that she has been my student and my scholar, but I'm very much a part of Central University here in Himachal Pradesh, and taught, of course, in University of Jammu for around 23 years, which is a very long time, and joined in this university in March 2023, because most of my work has been on Jammu and Kashmir. It's I'm really happy to be here with you. And as is the tradition, as I understand, that I will try to speak in a mixed language, bilingual, both Hindi and English. ठीक है, शायद ये अच्छा रहेगा. क्या कहते हैं आप लोग? नमस्कार नमस्कार मैम, बिल्कुल ठीक रहेगा मैम. जी जी नमस्कार. She is also a student of sociology. I would always call ourselves, the first and the foremost thing, that we call ourselves students, no matter which position we occupy. Ultimately, and we are all students because It's all your blessing मैम. चलिए कंटिन्यू. Thank you so much. So I would just concentrate a little on my topic, because this is an orientation program, I understand, because it in this many things are told to you as a part of the university, as a part of the subject, etc. But I will be very focused in the sense, because we are
all the students are from Department of Sociology, so, and also the faculty members, and maybe some others are also there. But it is the program of the Department of Sociology and Social Anthropology, which of course are very much interrelated. तो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं एक बैकग्राउंड से, और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि वरना तो आपको पता है कि कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए और आप उससे पूरा एक लेक्चर दे सकते हैं, और इसमें इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे इश्यूज हैं कि हम लोग के लिए इतना थोड़ा सा टाइम काफ़ी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस थोड़े से समय में ये कोशिश करूंगी कि आपको ये बता सकूं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है, वो किससे संबंधित है, और तब से जब से इसकी उत्पत्ति या आप कहिए ओरिजिन ऑफ द डिसिप्लिन हुआ है, तब से लेके आज तक इसमें क्या क्या नए आयाम, एज वी से द ट्रेजेक्टरी ऑफ द डिसिप्लिन, what has been. And let me tell you that since all of you are aware that it was the discipline as such, just to start my talk, everybody knows that it is from 1838 that August Comte gave this concept of sociology, which was earlier called social physics, society and the study of society in the most scientific manner, both from Latin and Greek words it's been derived. ये चीजें हम लोग इवन ग्रेजुएशन में बच्चों को बताते हैं। तो 1838 1938 अभी 20 जो है, ये 38 ये नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग मतलब जो 21st सेंचुरी है, अभी शुरुआत है इसकी, तो आप एक समझ लें कि जो है एक लगभग 200 साल भी पूरी तरह से नहीं हुए, एक ये नया विषय है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यंग साइंस, यंग सोशल साइंस, unlike political science, economics, law, mathematics, and all the sciences subject. And also in India, I must say, because जैसे कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोशियोलॉजी, इसको थोड़ा सा टाइटल इसलिए किया गया, या श्रेया के साथ डिस्कशन हो रहा था उसमें, कि बहुत सारे लोग, हम लोग ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि कब हुआ, क्या हुआ, कौन कौन से थिंकर्स थे, क्लासिकल थिंकर्स, जैसे आपको ही पता है, ऑगस्ट कॉम, स्पेंसर, मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम, और बहुत सारी चीजें लोग, बच्चे उसको पढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ द डिसिप्लिन। लेकिन इंडिया में, हमारे देश में, वो भारत में, मतलब किस तरह से ये सब्जेक्ट आया, किस तरह से शुरू हुआ, इसकी जानकारी लोगों को थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। तो उस पर मैं थोड़ा सा आ जाऊंगी जल्दी से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगस्त को हमने इसकी शुरुआत की थी, और वो सोशल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एक तरह से स्टूडेंट भी रहे, टीचर भी, रिसर्च उन्होंने उस पर की। और इससे, और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो बायोलॉजी के थे, तो जैसे उन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी, जैसे कि सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करना, मतलब इन अ नटशेल आप ये कह सकते हो कि सोशियोलॉजी शुड बी अ साइंस ऑफ सोसाइटी। जो टर्म आया वो आया पॉजिटिविज्म। I mean, we can study sociology or society in a similar manner as we study other natural sciences. चाहे वो फिजिक्स की उसमें हो, चाहे वो बायोलॉजी की तरह हो। और जैसे हम ऑर्गेनिज्म, जो अपनी बॉडी है, उसका स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं, और हर हिस्से का एक योगदान होता है पूरे शरीर के लिए, जैसे दैट वी कॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स टू द होल। तो उसका एक फंक्शन है डिफरेंट पार्ट्स का एक होल के लिए। तो आइडिया जो आया वहां से, वो आया फंक्शनलिज्म का और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। इमाइल दुर्खाइम बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है कि बॉडी और सोसाइटी जो है, ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी आर कंपेरेबल, whereby the different parts played a role। जैसे सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन भी रोल करते, तो स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म became a very important perspective in sociology। ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते इस समय, नहीं तो ये एक एक टर्म जो है इस पे पूरी एक क्लास हो सकती है। पॉजिटिविज्म मींस इट इज सोशियोलॉजी एज साइंस। जैसे कि ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा कि थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल टू पॉजिटिव स्टेज। तो हम लोग इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं। और सोशियोलॉजी कैसे साइंस हो सकती है? क्या सोशियोलॉजी पॉजिटिव साइंस है? क्या हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन है जैसा कि फिजिक्स है या केमिस्ट्री है?
तो पहले के लोग जिसको हम पाइनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी या फाउंडिंग फादर्स भी कहते हैं, उन्होंने कहा हाँ ये इसलिए संभव है क्योंकि जैसे साइंस में लॉज हैं, हम नियम है, कानून है, साइंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन थियोरीज एंड लॉज, न्यूटन लॉ, आइंस्टाइन लॉ, वन इज रिफ्यूटेड बाय द अदर बट नेवरदलेस द लॉ। उसी तरह से समाज में भी, अब समाज के कौन से नियम हैं, कौन से लॉज हैं? तो ऑगस्ट कॉम ने कहा कि एवरी सोसाइटी पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये एक लॉ है। मतलब आप देख लीजिए कि प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके जब हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, इवन कम्युनिज्म आगे और चल के, तो एक समाज का एक विकास हो रहा है अलग अलग आयामों में, है ना, तो अलग अलग स्टेजेस पे। मतलब एक समाज भी एक नियम को मान रहा है। अब परिवार जैसे आप ले लीजिए, पहले कैसे थे, या शादी ब्याह कैसे होते थे, कोई एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, ग्रुप मैरिज हो जाती थी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी। और अब तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि देयर आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज। आपने पढ़ा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज अलाउड। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें का एक ग्रोथ होता है, एक इंस्टीट्यूशन का भी ग्रोथ होता है, जैसे कि और चीजों के साइंसेस में जो हम पढ़ते हैं। दैट इज वाई इट इज अ साइंस। तो पॉजिटिविज्म, फंक्शनलिज्म जो है वो बहुत, और एवोल्यूशनरी तो जब हम स्टेजेस की बात करते हैं, किसी का भी काम उठा लीजिए, जैसे मैंने ऑगस्ट कॉम का आपका लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, Herbert Spencer has said that society moves from simple to more complex, to homogeneous to heterogeneous. Durkheim ने कहा mechanical to organic solidarity. Even Marx, at one stage, he said primitive communism to the later form of capitalism and communism. तो हर समाज जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक चरण से दूसरी चरण में जो है उसका एक तरह से आप कह लीजिए हस्तांतरण होता है। तो ये एक लॉ, एक नियम है। तो इस तरह से मेरा सिर्फ बहुत संक्षेप में आप लोग को ये बताना है कि जो 3 पर्सपेक्टिव ने इन्फ्लुएंस किया था, एक थे एवोल्यूशनरी, हिंदी में उसको उद्विकास कहते हैं, और प्रकार्यवाद जिसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है, और उस तरह से जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद, शायद मैं सही बोल रही हूँ। और इसके बाद जैसे एक मार्क्सिज्म कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी रही है कि समाज में जो होता है वो द्वंद होता है, डायलेक्टिक्स होता है आपस में, और उससे परिवर्तन आता है। तो फंक्शनलिज्म वाले कहेंगे कि जो एक अडेप्टिव चेंज है, एक सॉलिडेरिटी है, और अगर समाज में कुछ अनियमितता हुई, जैसे कि दुर्खाइम ने कहा कि जब मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ समाज जाने लगा तो क्या होने लगा कि एकदम से 100 लोग थे तो 10,000 लोग हो गए, और बहुत सारी जनसंख्या बढ़ी, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क हुआ, तो नए नए डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया। दिस वे सोसाइटी रिजॉल्व्स इट्स प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन मार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि जो चेंज आते हैं वो एक एवोल्यूशनरी फॉर्म में या इस तरह से स्लोली एंड स्टेडीली नहीं आते, बल्कि वो आते थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिक्स। जब हम डायलेक्टिक्स बात करते हैं तो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। मतलब एक ग्रुप है, जैसे कि वो कहते हैं कैपिटलिस्ट है तो वर्कर है, तो दोनों में लड़ाई होगी और दोनों में संघर्ष होगा, रादर आई थिंक रेवोल्यूशन आएगा, और उसके बाद एक और ऐसा समाज आएगा जो अल्टीमेटली एक समाज ऐसा आएगा जो समानता पर आधारित है, यू नो, बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो उस तरह के आपने देखा होगा कि कुछ रेवोल्यूशंस हुए रशिया में, चाइना में, और उस तरह के कुछ समाज स्थापित भी हुए। मतलब हिज थ्योरी इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस, ये नहीं कि खाली थ्योरी है। और मैं आपको एक चीज यही भी बोलना चाहूंगी, एम्फसाइज करना चाहूंगी कि थ्योरी और रिसर्च जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग थ्योरी, एक चैप्टर लिखते हैं थ्योरी पर, दूसरा रिसर्च लिखते हैं, खासकर रिसर्च स्कॉलर्स, और उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। बट जैसे मर्टिन ने कहा कि थ्योरी एंड रिसर्च हैव द बियरिंग ऑन ईच अदर, and if you have theory but if you do not have research, your theory, your work is empty, you know. And if you have research but do not have theory, it is directionless, it is blind in a way. तो मतलब दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप आजकल देख रहे हैं, कल आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि आजकल बच्चे, स्पेशली जो कोटा का इंसिडेंट सुना आपने, सुना ना, राजस्थान में तो बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और इट वाज शॉकिंग कि शायद अभी 25 हो चुके हैं, और इस बार लाइक द नंबर इज इंक्रीजिंग। सो दुर्खाइम हैज रिटन अबाउट सुसाइड एंड लॉट ऑफ पीपल गिव मेनी एक्सप्लेनेशंस। जैसे कोई कहेगा कि बच्चों को प्रेशराइज
डॉक्टर इंजीनियर बनना एक प्रेस्टिजियस है, पेरेंट्स प्रेशराइज एंड देयर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे कारण हैं। तो क्या हम इमाइल दुर्कheim की थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? और ये भी याद रखिए कि थ्योरी कभी इन फुल नहीं होती, वो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस थ्योरी को अपने सर्कमस्टेंसेस से किस तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपको एक डायरेक्शन, एक दिशा देती है। अब वो जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ पढ़ा हो दुर्कheim के बारे में, तो वो ये कहते हैं कि जो मेल्स कमिट मोर सुसाइड देन द फीमेल्स इन यूरोप बिकॉज हिज एंटायर स्टैटिस्टिक्स इज वाज द इट्स फुल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि प्रोटेस्टेंट कमिट मोर सुसाइड, और जो डेवलप्ड कंट्रीज में सुसाइड रेट ज्यादा होती है जो कम डेवलप्ड। और उसका एक जो मेन रीजन है, उन्होंने बताया कि जो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस है, जो हमारी कलेक्टिविटी rather than individualism is more important for us। कलेक्टिव कॉन्शियस स्ट्रांग है, तो जैसे कि मैं बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक हूँ, ईगोइस्टिक सुसाइड होगी कि नो मैं बहुत परेशान होगी, जैसे बच्चे हैं। लेकिन अगर हमारा एक परिवार है तो हो सकता है हम उस चीज को डिस्कस करें, बताएं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है वो फेटलिस्टिक ज्यादा जा रही है। फेटलिस्टिक मतलब कि दुर्कheim ने एक फोर्थ कहीं ऐड किया था कि जब सोसाइटी का टू मच प्रेशर हो जाता है, यू नो, एंड सो नथिंग in if it extra anything which is beyond the required an average normal thing, it pressurizes you। तो कलेक्टिव कॉन्शियस ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जैसे हम लोग के ऊपर, जैसे मान लो आप लोग बच्चे कि भाई नहीं ये पढ़ना है, यहाँ शादी करनी है, यहाँ मतलब कि हजार रिस्ट्रिक्शन, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिज्म भी, और दुर्कheim ने बिकॉज यूरोप में इंडिविजुअलिज्म ज्यादा था तो वो उस तरह से देख रहे थे। बाद में उनको पता कि रिप्रेसिव लॉ भी चलता है वहां पे, तो उस तरह से चीजें हो जाती हैं। तो कोटा में अगर हो रही है तो उसका कारण ये सब जो है वो तो है ही, पर कहीं ना कहीं जो असली कारण है, उन्होंने कहा कि इफ देयर इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन इन सोसाइटी देयर इज मोर टेंडेंसी फॉर द सुसाइड रेट टू इंक्रीज। ये थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल चीज हमने उनकी स्टडी से निकाली, और इस थ्योरी से हमने जब हाइपोथेसिस निकाली, और कैन बी not necessarily see that it is refuted or not, even hypothesis which is refuted is a good hypothesis, not necessary कि हमेशा acceptable होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि जो एक तालमेल समाज में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का, या आप कहिए कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, या हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रही है, तो समवेयर देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड वी आर नॉट एबल टू हैंडल दैट। तो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कैसे रिसर्च एंड थ्योरी शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू ईच अदर, और हमारी रिसर्च अच्छी तभी होती है जब दोनों का हो। तो ये सब चीजें रही हैं, और बाद में मैक्स वेबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उसमें मैं फिर नहीं जाऊंगी जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन मैक्स वेबर का ये रहा है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है साइंस, मतलब सोशियोलॉजी मतलब जैसे नेचुरल साइंस की तरह, पॉजिटिविज्म की तरह, लेकिन सब्जेक्टिविटी, सोशल एक्शन, meaning you give to your action, it's oriented to the actions of others in the presence of others, that is social action। और उसी social action से जो शायद थर्ड सेमेस्टर या आगे आ गए हो, डेवलप हुआ phenomenology, you know, which Alfred Shoes and others, they gave this concept of intersubjectivity। You can understand the subjectivity of others through your own subjectivity। तो कहने का मतलब है कि जो मेन, और मार्क्स भी बहुत सारे डायरेक्शन में गया, अगेन वी कैन नॉट डिस्कस दैट, बट जो मैक्रो थ्योरीज थी लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म का स्थान जो है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ने लिया। और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज जैसे फिनोमिनोलॉजी, फर्क मैं आपको वैसे बहुत ब्रॉडली बताऊंगी कि जो माइक्रो थ्योरीज, जो और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स के बजाय एक्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए, एक्टर्स एंड देयर एजेंसी। सो इसका सिंपल सा एक मतलब है कि अगर आप एक क्लास स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए, अगर आप पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर आप महिलाएं, और फिर उसके बाद आप एक दलित हैं फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, या ट्राइबल हैं, गरीब हैं, और उस तरह से वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, तो वो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। हाउ डू we understand those inequalities in society, which Marx of course he tried to do in the best possible way। लेकिन जब वो एक as an actor using your agency, your capacity to take action and make the difference, तो जहाँ actors important हो जाते हैं vis-a-vis the structure,
तो वो फिर ये फिनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से समाज का एक दृष्टिकोण है या पर्सपेक्टिव है थ्योरेटिकल, वो बदलता है इसमें। एंथनी गिडेंस पढ़ेंगे तो वो कहेंगे स्ट्रक्चरेशन, दैट इज द डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी वो हो जाता है कभी वो। और वो कहते हैं स्ट्रक्चर हमेशा कंस्ट्रेनिंग नहीं होते, वो अनेबलिंग भी होते हैं, कि वो हमारी हेल्प भी करते हैं कि भाई हमें आगे पढ़ रहे हैं, हम आगे बाहर जा रहे हैं, एक्सेट्रा। बट एनीवे दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जब तक थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती किसी भी डिसिप्लिन की, वो बहुत आधा अधूरा सा ही रहता है। जब हम इंडियन सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें मैं कहूँगी कि ये अभी हमने जो लास्ट सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी मेघालय में, जो 22 दिसंबर में हुई थी, अगली तमिलनाडु में है, तो उसका जो टॉपिक था प्रीवियस कॉन्फ्रेंस का, वो था 100 years ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। सो सोशियोलॉजी इन इंडिया हैज बीन 100 years ओल्ड डिसिप्लिन, ठीक है ना। एक तो हमें ये मोटा मोटा ध्यान रखना है। अब इसमें आप कहिए कि अगर हम देखें तो सबसे पहले जो जगह महत्वपूर्ण रही वो थी बॉम्बे। मुंबई नाम है उसका, मुंबई जाना जाता है, लेकिन पहले वो बॉम्बे के नाम से ही था। और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ये भी अभी भी है। तो वैसे तो 1914 में एक सब्जेक्ट शुरू हुआ था थोड़ा बहुत पढ़ाना, लेकिन उनका डिपार्टमेंट हुआ था 1919 एंड दिस वाज द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इफ यू रिमेम्बर। और बहुत क्रूशियल टाइम था, लेकिन इस समय जो है वो सब्जेक्ट शुरू हुआ। इससे पहले ये था कि बहुत सारे लोग ने इंडिया में, चाहे कार्ल मार्क्स में एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और इस तरह के बहुत सारे काम, चार्ल्स मेटकाफ, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने भी काम किया उसमें। खुद कुछ तो मिशनरीज थे, वो एक प्रचार कर रहे थे अपना धर्म वगैरह का, वो एक अलग था, लेकिन उसके माध्यम से भी कुछ परिवर्तन आ रहा था। एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और कुछ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एंड सम ऑफ देम वर लाइक, जैसे कि आप कहिए कि सेंसस थे जनरल, वो थे। और अब हटन का नाम लें, हेमंडॉफ का नाम लें, अब ग्रिग्सन का लें, वरियर एनविल का लें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने डिफरेंट कम्युनिटीज और स्पेशली ट्राइब्स पे काम किया था। तो कभी कभी तो लगता है, अब चाहे उसका एक क्रिटिक हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं आज की डेट में भी जो उतने अच्छे काम और इन डेप्थ, इंडियंस भी बहुत सारे थे, ऐसा नहीं है, साथ करते थे वो लोग आगे पीछे, श्रीनिवास, एस सी दुबे, बहुत सारे हैं, घुरिए। तो उस तरह से आप देखेंगे कि कोई जैसे एक, मैं तो ज्यादातर, क्योंकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी आपका डिपार्टमेंट है, मेरा खुद का डिसिप्लिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी रहा, जब मैं ट्राइबल्स पे मैंने पीएचडी की है, ट्राइबल वुमेन पे। तो उसमें मैं देख रही थी जैसे ग्रिग्सन है, गॉन्स ऑफ बस्तर, वेरियर एडविल हैं, द मारिया एंड द घूतुल। तो इतनी इन डेप्थ उस जमाने में, जहाँ पे 30s 40s, आप सोच लीजिए कम्युनिकेशन कितना होता होगा ट्राइबल एरियाज में जाके ऊपर अंदर, है ना। और किस तरह से उन्होंने एक तरह से, वो एक अपने आप में अलग बहुत विषय है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरह के काम हुए। इसको हम कई बार ओरिएंटलिस्ट भी कहते हैं, कि कैसे वेस्ट के लोग इसको समझने की कोशिश करते, ओरिएंटलिस्ट कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटर्स कह लीजिए, जो भी। लेकिन बहुत सारे इंडियन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी नजरों से, दे व्यूड इंडियन सोसाइटी फ्रॉम देयर ओन लेंस, रादर देन हमारी जो अपनी जो स्थिति है उसको उन्होंने इंडियन, मतलब कोई जैसे ब्रिटिशर इंडिया को पढ़ता है या इंडियन सोसाइटी को पढ़ता है, तो उसमें जो फर्क आता है, हालांकि कुछ लोग तो बहुत साल रहे, जैसे डिल्यूडमो है, वो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, वो तमिलनाडु में कितने साल रहे, तमिल बोलते थे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लैंग्वेज सीखे। मेलनोस्की हैं, ट्रोबिडन आइलैंड में रहे, तो ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनीज की लैंग्वेज सीखी उन्होंने। तो वो जो मुझे लगता है वो टाइम है जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, साल साल रहना, लोगों के बीच उनकी भाषा बोलना, उनकी हर चीज को समझना, उस तरह की स्टडीज जो है अब बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। एक पॉइंट मैंने मिस किया है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, कि जैसे मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई थी, वैसे एक इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था, जो कि उसका एक प्रभाव है। वो मेरे दिमाग में इसलिए अभी आया क्योंकि हम लोग नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं या इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और उसके बाद सोशियोलॉजी में इंडिया में काफी चेंज आया। समाज में क्या घटनाएं होती हैं उससे परिवर्तन आता है।
जैसे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली अगेंस्ट मोनार्की, अगेंस्ट प्रीस्टली क्लास, अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स, है ना, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम समाज को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं, देयर इज अ मूवमेंट इन सोसाइटी from the, from say monarchy to democracy, from domination to everybody getting equal rights. इसीलिए तो सब बात करें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन which gives equal rights to everybody irrespective of their caste, creed, gender, religion, etc. Society tries to become more equal. We challenge the hierarchical social order. हालांकि अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स डोमिनेंट हैं, लेकिन फिर भी एक ओपननेस, एक फ्लेक्सिबिलिटी एक सोसाइटी में धीरे धीरे आ रही है। शायद 20 साल पहले, 25 साल पहले वो चीजें हम जो आज एक्सेप्टेबल हैं उस समय नहीं थी। तो एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट का, एक टीचर का भी यही काम होता है कि समाज में चीज़ों को समझना और उस तरह से देखना कि किस तरह से परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी एक डोमिनेंट चीज़ कोई आपके ऊपर हावी नहीं हो, ताकि आपकी जो सोच है वो आप अपने हिसाब से करें। इट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, एज वी से। और सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिकली एक और बिल्कुल डिफरेंट विषय है, जैसे एथिक्स, भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जैसे दुर्खाइम से लेके आज तक सोशियोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि इन देयर रिसर्च यू शुड ऑलवेज रिमूव एनी काइंड ऑफ प्री कंसीव नोशन। उसका मतलब ये है कि जब भी आप रिसर्च करने जाएं, आपके दिमाग में पहले से, मतलब यू शुड गो विद द क्लीन स्लेट, कि अगर आप पहले ये सोच के जाएंगे ये लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा है, वैसा है, तो फिर आपकी जो अध्ययन है वो कहीं ना कहीं इम्पार्शियल हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वस्तुनिष्ठ जिसको कहते हैं वैसा नहीं रहेगा। तो ये मैं आप लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली इसलिए कहती हूँ कि आपका एक रोल है, एक दायित्व है, हमारा भी आपका भी समाज में, क्योंकि आप लोग उन लोगों से थोड़ा हटके हैं जो कि आप एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एक विषय के अंदर, है ना। जैसे आपने किसी की बातें सुनी, लोग ने कहा कि वो देखो वो महिला ऐसी है, गांव के लोग ऐसे हैं। आपका और हमारा ये फर्ज बनता है कि उन बातों को नहीं माने। लेकिन क्या करते हैं कि मतलब आप मान सकते हैं, लेकिन आप उसके पीछे जाइए, पहले उसको रैशनलाइज कीजिए। कि हम तुरंत उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं हुआ। So we always, besides doing a good research, teaching, we also have a duty to make this society more equitable, more flexible, and to view it more critically, जैसे कहते हैं, है ना। तो ये तभी होता है जब हमें नॉलेज हो। जैसे नॉलेज ऑलमोस्ट इज अ पावर, ऑफ कोर्स पावर इज आल्सो नॉलेज, जैसे फूको कहते हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो होना एक समाज की बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो बहुत जरूरी है। तो जो शुरुआती तौर पे जो, जब हमारे इंडिपेंडेंस मिली 1947, फिर मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत ब्रीफली कि जो 1919 में डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, वो एक पैट्रिक गिडिस थे, ब्रिटिशर्स थे, ह्यूमन जोग्राफर थे, उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद जीएस घुरिये, जिन्होंने बहुत रेस, कास्ट, ट्राइब पे काम किया, जिनका पर्सपेक्टिव वैसे थोड़ा इंटेलिजेंस था, और उन्होंने एक संस्कृत के भी स्कॉलर रहे बिसाइड्स बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने काम किया, और फर्स्ट उसके बाद वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। बॉम्बे स्कूल is known by his name. Then you have people like Iravati Karve, you have M.N. Srinivas, A.M. Shah, all those have been products. तो सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी में एक नाम आता है बॉम्बे स्कूल, जैसे कि अमेरिका में आता है शिकागो, हार्वर्ड से जैसे टालकट पार्सन्स एसोसिएट थे। एक और आता है जर्मनी में, यूरोप में, फ्रैंकफर्ट स्कूल, अगर आपको बताओ, फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थ्योरिस्ट माने जाते हैं। तो उस तरह से उसमें उसको हटा के मैं इंडियन उसकी बात करती हूँ कि बॉम्बे स्कूल जो है वो शुरू हुआ था 1919, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी एंड सिविक्स एक्चुअली कहा जाता था, पैट्रिक गिडिस, जीएस घुरिये, और उसके बाद बहुत फिर जो एम.एन. श्रीनिवास वहां पे पढ़े, वो 1959 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हिस्सा था, और वहां पे सोशियोलॉजी आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, मतलब शुरू से ही। तो बॉम्बे स्कूल, और एक और स्कूल कहा जाता है सोशियोलॉजी में, इंडियन सोशियोलॉजी में, जिसको कहते हैं लखनऊ स्कूल। लखनऊ स्कूल भी 1921 में पहला डिपार्टमेंट शुरू हुआ, राधा कमल मुखर्जी उसके बने पहले हेड,
और उसके बाद डीपी मुखर्जी, जिनके बारे में आपने सुना होगा, डायलेक्टिक्स और बहुत कुछ लिखा है इन लोगों ने, डीएन मजूमदार, जिसपे खासकर वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ए.के. सरन, तो ये लोग थे। उसके बाद बहुत बीसी जोशी हो या टी.एन. मदन हो, ऐसे ऐसे लोग लखनऊ स्कूल ने, बी.आर. चौहान हो, उन लोगों ने प्रोड्यूस किया लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट। तो बॉम्बे एंड लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट 1919, 1921, 1922 लगभग ये समय था, और तब से लेके 100 साल लगभग हो गए हैं। एंड सोशियोलॉजी इन इंडिया हैज गॉन थ्रू वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो यू हैव श्रीनिवास, यू हैव एस.सी. दुबे, और ये बहुत सारे और लोग जो रहे उसके बाद, और काफी सारे हैं, योगेंद्र सिंह, मतलब मैं किस किस के नाम लूं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंस मिली, तो जैसे 1959 में इनका दिल्ली में, 1960 में चंडीगढ़ में, और जम्मू में 1990 में 9 में आया आपके यहाँ। तो मतलब कि सोशियोलॉजी हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा कॉलेजेस में, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एक स्टैब्लिश सब्जेक्ट रहा। शुरू में जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उनकी जो एक ट्रेडिशन और नेशनलिज्म जिसको हम कहते हैं, कि भाई देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तो एक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, उसकी जो भावना है वो बहुत ज़्यादा व्यापक थी लोगों में। और डिबेट रही कोलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, जिसको योगेंद्र सिंह ने काफ़ी लिखा है, और उसी तरह से ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता चला गया, जैसे मैं एक बहुत इस बात को मानती हूँ ये भी कि थ्योरी और रिसर्च का कॉम्बिनेशन है, और ये भी कि जो समाज का कॉन्टेक्स्ट होता है, एक परिप्रेक्ष्य होता है उस समय, वो प्रभावित करता है लोगों को लिखने में। केवल सोशियोलॉजिस्ट ही नहीं, राइटर्स, जर्नलिस्ट, पोएट्स, उनको भी। तो आजादी के टाइम पोएट्स लिख रहे थे, क्रांतिकारी, रामधारी सिंह दिनकर, इस तरह के लोग। तो उस तरह से जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो भी लिख रहे थे, और बहुत कुछ उन्होंने इस तरह से लिखा। और इस समय ये भी था कि देयर वाज अ नीड टू कॉन्टेक्चुअलाइज एंड नीड टू इंडिजिनाइज। फिर श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, कि भाई हमें अपने को, समाज को अपने ही कॉन्सेप्ट, अपनी ही अवधारणाओं से समझने की जरूरत है। और इस तरह की जो चीजें हैं हमारे समाज में आई, हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, एम.एन. श्रीनिवास को, जिन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कूर्ग ऑफ साउथ इंडिया और रिमेम्बर्ड विलेज कर्नाटका में, उनको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट या फंक्शनलिस्ट मानते हैं। उसी तरह से दुबे को, जिन्होंने समीरपट गांव पे काम किया था। उस तरह से जो विलेज स्टडीज हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण रही, और ट्राइब्स पे रही, और इस तरह की। 50s was the era of village studies. It was an era of studying community development program. India's changing villages. S.C. Dubey, that's an analysis of community development program, who was also the vice chancellor of Jammu University around 79, 78. And then Panchayati Raj became important. The 60s and 70s, then gender started becoming very important. Women and then gender and development later on. And 80s में issues like rape and dowry became important. 90s में Panchayati Raj, National Commission for Women. 90s also, early 90s was like liberalization, opening of the economy, है ना। और उस तरह से जो 2000 आते आते बहुत सारे जो है, या हमारे 21st सेंचुरी आते आते नए तरह के कानून आ गए, खासकर रेप को लेके निर्भया के बाद, या सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट, पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड अब्यूज, इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन समाज में आने लगे। और कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि 21st सेंचुरी में इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस भी 2005 में आया, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड जो वर्किंग एट वर्क प्लेस था वो भी 2013 में आया, पॉक्सो भी अराउंड 12-13 में आया, बहुत सारे अभी जैसे ऑनर किलिंग का कोई कानून नहीं है। तो क्या इससे पहले क्राइम नहीं हो रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन एक समाज में एक चर्निंग हुई है, एक समझ आई है कि भाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो कितनी बड़ी चीज है। और कहीं ना कहीं एक तरफ समाज में इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही हैं। इनइक्वालिटीज एक्चुअली बढ़ रही हैं क्योंकि जिसके पास है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यू नो, एंड ऑल्सो कमर्शलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एक्सेट्रा। लेकिन एक हाथ पे वो हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ यूक्रेन रशिया ही नहीं है, हमारे देश में भी इनइक्वालिटीज सोसाइटीज में निरंतर बढ़ रही है एक हाथ पे। दूसरे हाथ पे सोसाइटी जो है ओपन हो रही है, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो रही है, और एक तरह से डायलेक्टिक्स है ये।
So how to understand all that is a very difficult task for the sociologist. But I would just say that issues have changed. Now people talk of empowerment, people talk of globalization, people talk of different theories like postmodernism and post-structuralism, because वो क्वेश्चन करती है हायरार्की को, डोमिनेशन को, यूनिफॉर्मिटी को, सेंट्रलिटी को। तो कुछ सेंट्रल नहीं है। जब आप स्ट्रक्चरलिज्म कहेंगे तो कहीं ना कहीं मैन इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर कास्ट इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिटिकल रिलीजन। बट जब आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म कहेंगे तो उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि विमेन मूवमेंट इसलिए ज्यादा नहीं सफल हो पा रहा था क्योंकि वो कह रहे थे अब एक ही तरह की औरतों को फोकस कर रहे हैं। विमेन, दलित विमेन, ट्राइबल विमेन हैव डिफरेंट इश्यूज। तो वो क्या, वो फ्रेगमेंटेशन, वो क्या, वो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इटसेल्फ। तो उस तरह से कहने का मतलब ये है कि जब विषय बदलते हैं, जब परिपेक्ष बदलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं, तो उनको पढ़ने का दृष्टिकोण भी बदलता है। दृष्टिकोण जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि पर्सपेक्टिव, अप्रोच, थियोरेटिकल अप्रोच। तो उसके साथ साथ हमारी थियोरेटिकली हम उन चीजों को किस तरह से समझते हैं। इसलिए आज हम फिनोमिनोलॉजी और उसकी बात करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन की। उससे भी आगे जाके हम स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट सच एज इंटरसेक्शनैलिटी, है ना। Intersectionality, it is not enough that you're studying women, but you are also studying her caste to which she belongs, her religion to which she belongs, her economic condition, her education level. जब तक आप इंटरेक्शन ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर इस फॉर एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक आप उसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो उसी तरह से सोशल इंक्लूजन सेंटर है यहाँ पे, एक्सक्लूजन इंक्लूजन पॉलिसीज के। तो हाउ टू मेक आवर सोसाइटी मोर इंक्लूसिव, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कितनी बार, हाउ टू मेक अ सोसाइटी मोर डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव। उसका ये मतलब है जो लोग एक्सक्लूडेड हैं आप उनको इंक्लूसिव बनाएं। जब तक हम वो नहीं तो फिर वही सेंटर पेरिफेरी वाली चीज हो जाएगी। तभी वो डेरिडा कहते हैं कि भाई यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड। All of us need to construct the dominant views and images of a society, the dominant stereotypes of a society, है ना। मतलब हम, मैं इसको एक जोड़ रही हूँ थोड़ा थ्योरीज और कॉन्टेक्स्ट और जो प्रैक्टिस है उसके साथ। बहुत मुश्किल काम है एंड आई कैन नॉट डू जस्टिस टू इट, बट we then have a responsibility not only as a citizen of the country but also as a student of sociology to bring about change which is more emancipatory, which is good for the society. और ये मत समझिए कि sociologist is not a social worker in a way. He or she is not there to do revolutions etc necessarily, but his or her writings, speaking, way of thinking, talking should make a difference to what is happening in the society, because then you question inequalities, then you question the dominance, then on the basis of rationality, on the basis of reasoning etc, or on the basis of that kind of flexibility or what is called reflexivity which has come. तो ये सब चीजें जो हैं इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थ्योरी भी, रिसर्च भी, प्रैक्टिस भी, एक्शन जिसको कई बार कहते हैं कि एक्शन का मतलब नहीं है कि आपको आंदोलन लेना, आप अपनी सोच में परिवर्तन ले आइए। आप अपनी भी सोच और साथ में जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है टीचर में ही नहीं होगी तो वो स्टूडेंट को क्या देगा आगे, है ना। तो उस तरह की चीज, भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन, you may say that's not your role, but I would say it is a role of every teacher, every citizen of this country, in fact, to make our society a little more better place to live in, more flexible, more open and also more critical. एक बार ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको हर चीज जैसी है वैसे एक्सेप्ट करने की हम लोग सभी को हर बार जरूरत नहीं है। There is some called critical sociology. You have to question, you have to, if you think that something is wrong or, बट वो लड़ाई झगड़ा जैसे कई बार होता है, हमने अपनी पार्लियामेंट तक में देखा है, वो नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी। हेबरमास कभी आपने पढ़ा होगा तो वो कहते हैं कि कम्युनिकेटिव एक्शन इज द बेस्ट एक्शन which is which is based on rationality. तो आप और मैं, हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। You can win from me by arguing in a most logical manner. This is the way democracy should actually function, where I'm getting the liberty to say and you also, और आप मुझे सुने और मैं आपको सुनूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ये पोजीशन है, मैं हेड हूँ, मैं प्रोफेसर व्हाटएवर एंड मैं सही हूँ आप गलत है, ऐसा नहीं। I should listen to you, and when I listen to you I should listen
कीपिंग माई ओन व्यूज असाइड, अपने विचार जो हैं पूर्वाग्रह जैसे कहते हैं उनको मैं अलग रख के आपकी बात सुनूं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस जो है हमारा बोलने का, वो सोचने का, वो कहीं आप जो सोच रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं वो हावी ना हो जाए उस पर। तो ये जो विषय है सोशियोलॉजी का, और एक पार्ट में तो मैं बिल्कुल नहीं आई जो मैंने सोचा था, बट मैं अब आऊंगी भी नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कि हाउ सोशियोलॉजी इज यूजफुल। द ओनली थिंग आई विल से इट्स अ वेरी गुड एकेडमिक डिसिप्लिन। इस तरह से मुझे लगता है कि डेवलप होना चाहिए था विषय, एकेडमिक, टीचिंग, रिसर्च, very many NGOs, many institutions, government institution, many departments. Many of my students are working, say, in social welfare department in Jammu, in Panchayati Raj, rural development, health department, women and child development. और मेरा ये बहुत मानना है कि सब जगह सोशियोलॉजिस्ट होने चाहिए। अ पर्सन सोशियोलॉजिस्ट इन द सेंस, अ पर्सन हुज गॉट ट्रेनिंग एंड टीचिंग इन सोशियोलॉजी। तो आप जब एससी दुबे आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम इसलिए नहीं सफल हो पा रहा है क्योंकि आप बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक की तरह से चल रहे हो। हम ब्यूरोक्रेटिक या नौकरशाही की व्यवस्था में जब हमें डिफरेंस लाना है तो हमें सेंसिटिविटी चाहिए, और स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी सेंसिटिव to what is happening in society, to the inequalities, to the discrimination of whatever kind and whatever form, and try to make society so that it becomes a better place to live in. Of course, a very good subject for IAS and administrative thing. And I somehow feel that all those students who read and study sociology and become IAS officers or the state level officers are more sensitive to understanding the condition and situation. So I think I can speak a lot about it, but I think that should be enough just to convey my views, and एक ओरिएंटेशन के लिए मुझे लगता है ये पर्याप्त ही होगा। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, बहुत अच्छे विचार। आई थिंक मुझे जी। लगता है सभी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस, क्योंकि मैम ने जस्ट वन एग्जांपल आई हैव शेयर्ड, लाइक मैम ने एक चीज़ बोला कि रिसर्च और जो थ्योरी रहता है, दिस इज़ द डिफरेंस, बट एक दूसरे को देख करके ही एक दूसरे को थ्योरी के साथ साथ जो है हम लोग रिसर्च का काम करते हैं। लाइक इसके साथ साथ मैम ने एक हमारे टाइम की सोशियोलॉजी भी हम लोगों को याद आ गई, जिसमें आपने अवस्थाएं जो थी कि हाँ उन पे भी आपने डिस्कस किया, जो जो चीज़ें मैंने सुनी समझी। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल लेक्चर टू ऑल ऑफ यू न्यू स्टूडेंट्स, इवन ऑल ऑफ अस। तो इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे विचार हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ शेयर किए। आगे से भी हम मैम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे अच्छे सजेशंस हम लोगों के लिए आते रहें। तो इसके लिए मैं ये हमारे कन्वीनर डॉक्टर श्रेया जी का भी धन्यवाद करती हूँ। मैम इसी तरह से आप कंटिन्यू करिए अगले नेक्स्ट वीक कुछ दिनों तक अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और ऐसे बच्चों के साथ रूबरू, और मैम कभी आप वो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी हमारे साथ इंटरेक्ट होने का हमें भी मौका दीजिए कि हम भी आपसे मिलें और बच्चे भी आपके साथ रूबरू हों। डॉक्टर श्रेया जी को भी धन्यवाद इन शॉर्ट ऑफ टाइम में, आई थिंक सो, क्योंकि कल मैंने सुना कि आप ऊपर थे तो ये किया। इसके साथ साथ जो भी हमारे साथ हमारे शोधार्थी स्टूडेंट्स, और जैसे आपने अभी नाम लिया था सर का, शायद अदर यूनिवर्सिटी से भी ज्वाइन है हमारे साथ, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए और हमारे स्टूडेंट्स के साथ विचार साझा किए। तो एक बार फिर से पुनः धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अब मैम आपने बहुत ही सरलता के साथ इस जटिल मुद्दे को हमारे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ साझा किया, और जैसा कि हमारे शशि जी ने कहा कि हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम फिजिकल मोड में आपका एक पूरे दिन लंबा एक कार्यक्रम कराएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1-1.5 घंटे में नहीं हो पाता है। मैंने ही मैम को कहा था कि मैम 11:30 से पहले हम वाइंड अप करेंगे, तो मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को रिलेट किया, और आई एम श्योर कि all the students are going to be benefited and all the scholars they are quite happy, we can see from their faces also. So thank you very much ma'am. Thank you, my pleasure. Thank you so much for inviting me. Thank you. And so shall I leave now? जी सॉरी मैम। अरुण, चाय नहीं, how are you? क्या हाल है, आप ठीक ठाक?
Thank you. We are feeling nostalgic about our classroom and our sessions in University I of think Bombay. you can give 1 minute to Arun to say something. sure. Arun. Thank you. मुझे भी. Dr. Ruchi has also joined, ma'am. Ruchi. Oh, Yeah. how nice. She's all. Arey, your mic is off, Ruchi. Unmute करिए. Unmute yourself. Unmute करिए. रुचि आपकी माइक म्यूट है. जी मैम. गुड मॉर्निंग मैम. हेलो श्रेया मैम. श्रुति जी नमस्ते. क्या पहचान पा रही है मेरे को भी? जी मैम. हेलो, पहचान लिया मैंने. बहुत बढ़िया. So I think it's I think good way of interacting and कुछ हिमाचल और जम्मू के बीच में एक interaction हो गया. अच्छा, I'm so happy. She's also done PhD and me she's also assistant professor. So has Arun and श्रेया तो हैं ही. तो आप लोग सब यहाँ पे जुड़ गए. ये बहुत जी मैम. मुझे लगता है मैंने लेट शेयर किया ग्रुप में. प्रोबेबली मैं थोड़ी जल्दी करती तो बाकी के स्कॉलर्स भी जुड़ जाते जम्मू से. मैंने जैसे देखा ना क्लास के बाद तो मैंने वैसे ही ज्वाइन किया. तो ये वो एक यहाँ पे ओरिएंटेशन मुझे भी नहीं अंदाजा था कि आप लोग ज्वाइन कर लेंगे. लेकिन आप इसी बहाने देख के और आपसे बात करके मिलके थोड़ा बहुत रूबरू तो हो ही जाते हैं फिर, है ना. जी मैम. बहुत अच्छा लगा सुन के. और सब ठीक ठाक रुचि? बिल्कुल मैम. बिकॉज मे बी दे हैव सम अदर प्रोग्राम. तो आप लोगों से फिर कभी मुलाकात होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी. ठीक है. चलो. ओके मैम. बाय बाय ऑल ऑफ यू. थैंक यू ऑल. थैंक यू रुचि, अरुण. थैंक यू मैम. ओके बाय. बाय बाय मैम.